ذکر کر سکتے ہیں. غیروں کے لیے ہمارے بھی اس منبر پہ علماء ہیں جو غیروں کے لیے خطاب کرتے ہیں. میں کہ چونکہ میں کم علم ہوں اس لیے میں اپنوں کی بات کرتا ہوں، اور جو زیادہ عالم ہے وہ غیروں کے لیے بات کرتے ہیں. بات یہ ہے نماز شمر نے بھی پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے نا، تو کیا وہ نماز زنا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. حضور ایک نماز وہ ہے جو گلا کٹوا رہی ہے، ایک نماز وہ ہے جو گلا کاٹ رہی ہے، ایک نماز وہ ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور نماز کے گھر کو اجاڑ رہا ہے. ایک نماز وہ ہے جو پڑھ بھی رہا ہے اور گھر لٹوا بھی رہا ہے. بولا کہتے ہو ول بالرحمت ہی کثرت رحمت باعث عذاب ہے. سبحان اللہ. توجہ قبلہ کیجئے کہ کثرت رحمت باعث عذاب ہے. حضور ابھی دعائیں کرے بارش نہیں ہو رہی، اور اگر ایک ہفتہ کنٹینیو بارش ہو رہا ہے پھر دعائیں کریں گے یا اللہ یہ بارش رک جائے. کثرت رحمت ہے نا، کثرت رحمت باعث عذاب ہے. بولا کیا کہتے ہو ول بعبادتہ ہی. میرا جملہ نہیں ضائع ہو، حلالیوں سے بات ہے، غیر حلالیوں سے میری گفتگو نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نماز کا مخالف نہیں ہوں مگر روایت میں سنتے جائے گا. توجہ کیجیے گا کہ ہو ولی عبادت ہی بے عبادت یا بدل عادت ہی. نماز کی عادت لے کے جائے گی جہنم میں، اور نماز کی عبادت لے کے جائے گی جنت میں. اب تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، عادت والے کون ہیں، عبادت والے ٹھیک ہے نا. حضور بات یہ ہے کہ وہ 9 لاکھ کا مجمع عادتاً نماز پڑھ رہا تھا. قتل کرو نماز پڑھنی ہے. میرے اللہ توجہ نہیں کر رہے بھائی، وہ عادتاً پڑھ رہے تھے نا بھائی، قتل کرو جلدی جلدی قتل کرو نماز پڑھنی ہے. توجہ نہیں کر رہے بھائی. عادت کیا ہے؟ عادت یہ ہے کہ جان پہ خطرہ ہے تو نماز چھوڑ دو، یہ ہے عادت. عبادت کیا ہے کہ نیزہ یہاں ہو سر سجدے میں ہو. عادت کیا ہے؟ عادت کیا ہے؟ قرآن کی آیت میں نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، میں پھر پڑھ رہا ہوں. عادت کیا ہے؟ فوائل للمصلیین الذین هم عن صلاتهم ساہون. لعنت ہے ان نمازیوں پہ، بے نمازیوں پہ نہیں، نمازیوں پہ. ہاں سورہ مومن کی آیت نکالیے، فوائل للمصلیین الذین هم عن صلاتهم ساہون. لعنت ہے نمازیوں پہ، نمازیوں پہ. سجدہ کرنے والوں پہ لعنت ہے، رکوع کرنے والوں پہ لعنت ہے، سجود کرنے والوں پہ لعنت ہے. کیوں؟ نمازوں سے غافل ہیں. یعنی میں یوں کہہ دوں نماز پڑھتے ہیں نماز سمجھتے نہیں، سجدہ کرتے ہیں سجدہ سمجھتے نہیں، رکوع کرتے ہیں رکوع سمجھتے نہیں. ہاں ایک بندہ آیا رسول کے پاس، یا رسول اللہ میری نماز باطل ہوگی صبح کی. سبحان اللہ. کہا کیا ہوا؟ پڑھی نہیں. کہا پڑھی ہے. تو کہا باطل کیسے ہوگی؟ کہا مولا سمجھ ہی نہیں آئی. میں نے وضو کیا، مسلے پہ آیا، میں نے کہا اللہ اکبر، بسم اللہ کے بعد میری زبان سے فوراً ابو طالب کا نام نکل گیا. کہتے اب میرا حق بنتا ہے کہ میں چھوڑ ہی دوں. تو جو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کی خاموشیاں نیزوں سے کم نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں اب کہتا ہوں کہ گاڑی نہیں چلتی تیل کے بغیر، اور علی باکر نہیں چلتا علی علی کے بغیر. ٹھیک ہے نا سر؟ میرے ساتھ تھوڑا بولیے کہ مولا میری نماز باطل ہو گئی. میں نے اللہ کی نماز میں بسم اللہ اللہ کا نام نہیں لیا. تو مولا نے کہا کیا نام لیا؟ کہ میں نے جو ہی تکبیرۃ الاحرام کے بعد اللہ اکبر کہا تو زبان سے بسم اللہ کے بعد ابو طالب کا نام نکلا. میں بڑی کوشش کرتا رہا سورہ فاتحہ پڑھنے کی، مگر ذہن سے اور زبان سے ابو طالب نکلتا رہا. میں رکوع میں گیا تو پڑھنا تھا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، مگر نہیں پڑھا، میری زبان سے ابو طالب نکل گیا. میں نے سجدے میں جا کے پڑھنا تھا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ،
नहीं पढ़ा गया। अबू तालिब का नाम निकला। फिर दूसरी रकत हुई को मैंने बिस्मिल्लाह के बाद मेरी ज़बान से हुसैन निकल गया। फिर रुकू में मैंने सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना था मगर नहीं निकला, ज़बान से हुसैन निकल गया। मैं तो दिल चाहते आधी हकीकत यही छोड़ के फिर मैं सजदे में गया, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही पढ़ने की बजाय मेरी ज़बान से हुसैन निकल गया। रसूल मुस्कुराते हैं, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी नमाज बातिल है? का मौला ऐसा ही है क्योंकि उसकी नमाज में उसके गैर का जिक्र आ गया। रसूल ने जब सुना ना गैर का जिक्र आ गया, कहो बसलात ही बिल गैर ही, उसकी नमाज में गैर आता ही नहीं है। अना बेइश्तराक, हम वो है, हम वो है। जितनी नमाजें पढ़ी हैं कबूल हो या ना हो, मगर याद रखने इस नमाज को कोई फरिश्ता तुम्हें जन्नत जाने के लिए रोक नहीं सकता, क्योंकि तुमने सामित में नातिक दाखिल की है। हाय हाय हाय, तुमने फरू में असूल दाखिल किया है। तो लानत उस नमाज पे है जो बुग़्ज़े आले मोहम्मद में पढ़ी जाए। जो हुब्बे आले मोहम्मद में नमाज पढ़ी जा रही उसकी मुखालिफत नहीं है। सरकार हम अबू ज़र के पैरोकार हैं, अबू ज़र नमाजी है। हम सलमान के पैरोकार हैं, सलमान नमाजी है। हम हुर के पैरोकार हैं, हुर नमाजी है। तवज्जो कीजिएगा, हम मिक़दाद के पैरोकार हैं, हबीब के पैरोकार हैं, सईद के पैरोकार हैं, ज़ुहैर के पैरोकार हैं। ये नमाजी हैं। और कितना है, इन्होंने नमाज पढ़ी भी है, नमाज समझी भी है। जो नहीं गर्दिदार मोहतरम, हाँ हाँ, मैं इसकी बात करता हूं। मैं सलमान से पूछा गया घर क्यों नहीं बनाते, का जरूरत ही नहीं है। का शादी नहीं करते, का इसकी जरूरत नहीं है। क्या तुम मस्जिद में बहुत कम आते हो, का जरूरत ही नहीं है। क्या तुम रसूल के पीछे कभी कभी नमाज पढ़ते हो, इसकी जरूरत ही नहीं है। क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? क्या अल्लाह का खौफ तो उसे हो जो नहीं पढ़ता। मैं तो हर वक्त हालत नमाज में हूं। का वो कैसे, का हसन को देखूं तो नमाज, हुसैन को देखूं नमाज, अली को देखूं नमाज, तस्जूद हो वल बाबुल फातिमा, और मेरी नमाज़े बाब फातिमा पे सजदा करती है। नमाजी को नहीं कहा मिन्ना हुलल बैत, तवज्जो नहीं कर। अबू ज़र को नहीं कहा कि तुम्हारी अहले बैत से है, मिक़दाद को नहीं कहा कि तुम्हारी अहले बैत से है। जो बतूल के दर पे झुकता था उसे कहा सलमान मिन्ना हुलल बैत। अब रसूल की अहले बैत से वही होगा जो उनके दर पे झुके, जो बतूल के दर पे झुकता है, और वो अहले बैत से खारिज हो जाएगा जो इनमें शक करता है। रसूल का सगा अबू लहब सगा है, डायरेक्ट है। आज हम आप तो इनडायरेक्ट है ना।
डायरेक्ट तो नहीं है ना, बाप दादा चाचा ताया नस्लें बढ़ती शजरे मिलते जाए, कोई किसी इमाम से मंसूब है, किसी इमाम से मंसूब है। अबू लहब तो डायरेक्ट है। सरकार वो शक करे तो चचा नहीं रहता। और सरकार उसने कुल्ली मोहम्मदों में शक नहीं किया, एक मोहम्मद में शक किया, तो वो चचा नहीं रहा। जो 14 मोहम्मदों में शक करे वो सैयद कैसे शक दिल से नहीं किया था, ससुराल में बैठ के बड़ा बोल गया। खैर यहाँ बीवी को राजी किया उसने, तो चचा नहीं रहा। इतनी बात अल्लाह को पसंद नहीं नीचे उतरा, बटियाकों की तरह लड़ा, तब किया था अभी तो इतरत आले मोहम्मद पे यकीन करना है। असल ये है, मासूम फरमाते अगर कोई हमारा हो, हमारी नस्ल से हो, ये नहीं है वो हमारा दुश्मन हो जाए तो वो हमारा नहीं रहता। और अगर गैर हो, हमारी नस्ल से भी ना हो, वो हम पे कुर्बान हो जाए, हम उस हुर को भी भाई कह देते हैं, हम उस हबीब को चचा कह देते हैं, उस जौन को गोद में लिटा लेते हैं, क्योंकि ये हमारा है। हाँ, हजूर के मसला चल रहा है। पाशा ने बात की, मुझसे बात ऐसी बात ज़हन में आ गई। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, उसने सवाल किया कि मौला अगर कोई सैयद ज़ादी गैर सैयद से शादी कर ले, कहते हराम। तवज्जो, बोला कहते हराम। मैं उसी पे सरकार, मैं इसे 2-3 मिनट के बाद मैंने अपने मौजू पे आना, मैं बात गुजार के ताकि मेरे सामने तक बात पहुंच जाए। मौला ने कहा कि हराम है, अफजल मफजूल एक नहीं हो सकते, क्योंकि शोहर हाकिम होता है। तवज्जो किबला कीजिएगा, जो औरत सैयद ज़ादी है वो महकुमा कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। उसे तो फितरत ने हाकिम बनाया। कब मौला अगर कर ले, तवज्जो किबला कीजिएगा, मौला ने कहा उसे इजाजत है, वो कर सकती है। लेकिन हमारे का मौला आप तो कह रहे हराम है, तो का मौला ने हम भी है कब भी कह रहे हैं कि हराम है, मगर उसके लिए सजा है दुनियावी, आखिरत की तो उसे भी इदराक नहीं कि हमने क्या सजा रखी है, मगर उसकी दुनियावी एक सजा है उस सैयदादी के लिए जिसने गैर सैयद से अक्द कर लिया। हम आले मोहम्मद ने उसके लिए दुनिया में एक सजा रखी है। तवज्जो है या नहीं है? का मौला हुक्म कीजिए कौन सी? का उस सैयदादी पे सदका, फितरा, ज़कात हलाल हो जाती है, खुम्स हराम हो जाता है। मैं आप लोगों का तवज्जो नहीं किया, उसके ऊपर खुम्स हराम हो जाता है। हजूर इससे बड़ी सजा तो मेरे ख्याल से नस्ली सैयद के लिए तो हो ही नहीं सकती, शर्त है नस्ली सैयद हो। और हजूर फतवा तो फरू में चलता है, असूल में फतवा नहीं चलता। और सैयद का मसला ना असूली है ना फरूई है।
आले मोहम्मद के घर में दाखिल देना, फतवा चलेगा नमाज पे, रोजा पे, हज पे, ज़कात पे, खुम्स पे, जिहाद पे, अमर बिल मारूफ है, नही मुनकर पे, तवल्ला पे, तबर्रा पे, इस पे फतवा है, कबूल है। क्योंकि ये सारे मसले हैं घर के बाहर। कुरान कह रहे मोहम्मद के दरवाजे पे ऊंचा बोलो नहीं, जो नहीं कर रहे, मेरे हबीब के दरवाजे पे अपनी आवाजों को धीमा रखो। जब अल्लाह को ऊंचा बोलना गवारा नहीं, ये कैसा गवारा कर लेगा मोहम्मद के घर से फतवे शुरू हो जाए कि ये जायज नहीं तो ये जायज नहीं है। नहीं, सैयदादी कुल्ली उम्मत पे हराम है, वो सैयद के लिए जायज है। समझो ये नहीं है। और मासूम क्या कहते हैं, मौजू दोबारा आ जाते हैं। मासूम फरमाते हैं जो हमारा नहीं, अगर हमारा मुनकिर है बेशक, वो हम उसे नस्ल से खारिज कर देते हैं, खारिज हो गया। क्या हुआ, नहीं रहता तो बात। अगर कोई हमारा है और हमारा मुखालिफ हो तो हम उसे अपने नस्ल से खारिज कर देते हैं, और अगर कोई हमारा नहीं और हमारा हो जाता है, हम उसे अपनी नस्ल में दाखिल कर लेते हैं। इतरत सैयदा की कसम, बंगाल का एक सैयद, 300 साल पहले की बात है, नियत की कि हुसैन के रोजे की ज़ियारत करनी। तवज्जो। अच्छा, गाड़ी वाड़ी का तो जमाना नहीं था, ऊंट वूट चलते थे। वो आता है, एक नसरानी से ऊंट किराए पे लेता है। नसरानी ने कहा मुझे रास्ता मालूम है हुसैन करबला जहां है, मगर मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि लोग जाने नहीं देंगे, मैं तुम्हें मेन दरवाजे पे उतार दूंगा, तुम जियारत करके आ जाना, फिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल वापस ले आऊंगा। इधर से ये सैयद ऊंट पे बैठ के चला कि मजावर को हुसैन बादशाह ख्वाब में आए, कहते हैं कि एक सैयद आ रहा है, उसके लिए दरवाजा खोल दो। जब वो तुरबत के अंदर आ जाए तो बाहर से दरवाजा बंद कर दो, मैं हुसैन से राजो न्याज करना है। तवज्जो, ऐ सैयद इनको तौफीक दीजिए, ये मेरी बात समझ लें। फकीर का दर है, कोई आए ना आए, कम अज कम वो तो यहाँ बैठे होंगे, इमाम ज़माना के हुजूर आपकी और मेरी पूरी रिपोर्ट देंगे। तवज्जो है या नहीं है जाने मौत। जो ही मजावर ने हुलिया सुना मौला से, सैयद से मिले कि आपका ये हुलिया है, तो आपको मौला ने याद किया, कहा मुझे, मेरी इतनी बिसात, मेरी औकात कहाँ है, पर मेरे मौला का हुक्म है, मेरी ज़ियारत तो हो गई, तुरबत को देखूं या ना देखूं, तो मेरे मौला ने मुझे याद कर लिया। तवज्जो किबला कीजिएगा। वो आता है, मजावर ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब ये बंगाली सैयद जो देखता है कि एक तख्त लगा, हुसैन आते हैं, और एक फरिश्ता आता है जो हुसैन को एक रजिस्टर देता है, उसके ऊपर पूरे दिन के जवारों के नाम लिखे थे। छोड़ दें किबला, उसके ऊपर जवारों के नाम। हुसैन ने वो नाम पढ़े, फरिश्ते को वापस देके कहा ये नाम मुकम्मल है, ये नाम मुकम्मल है, इसके अंदर मेरे जवारों के नाम मुकम्मल नहीं है। देखता है, कहा मौला मैंने तो उसका भी नाम लिखा है जो शिकवे मादर में है। तो बोला क्या करूं, मेरे साथ थोड़ा बोलिए, मसाइब नहीं है, ये फजाइल है, मैंने तो उसका नाम भी लिखा है। मौला कह रहे मैं हुसैन कह रहा हूं कि नाम मुकम्मल नहीं है, ये मुकम्मल नहीं है, जाओ इसे मुकम्मल करके लाओ। अब बंगाली सैयद देख रहा है, वो फिर जाता है, यार करीब में देखता है कि कोई ऐसा जवार जो हुसैन की तुरबत से होके चला गया और मुझे ना पता चला हो, मगर फिर आता है, कहा मौला ये तो मुकम्मल है, मेरे हर उसका नाम लिखा है जो तेरी तुरबत की जियारत करके गया है। कभी भी कह रहा हूं कि नाम मुकम्मल है। फरिश्ते बैठ गए, सोचना शुरू हो गए, कहा मौला दस बदस्ता हमारा इल्म तो आदम से भी कम है, आदम से भी कम, आप तो आदम के खालिक हो, हम आपके साथ कोई बात नहीं कर सकते, आप हमारी इस्लाह फरमा दीजिए। का ये सैयद देख रहे, का जी मौला, का इसके साथ एक अहले नसरान भी आया है। आप लोगों का तवज्जो नहीं करेंगे, एक नसरानी आया है, उसका नाम क्यों नहीं लिखा? का मौला दस बदस्ता वो तो ईसाई है, क्या वो ईसाई है, हमारा मुनकिर नहीं है, तवज्जो नहीं की, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दुश्मन नहीं
मेरी औलाद को मेरी तुरबत पे लेके आया है, तुम्हें मालूम नहीं वो भी इसी जैसा मेरा बेटा है, जाओ उसे बुलाओ कि हुसैन ने याद किया है। हजूर हुसैन किसी को बेटा कहे तो वो जॉन हो सकता है, शर्त है इनकी मारिफत। ठीक है, और मौला फरमाते हैं कि काबे का तवाफ करने वाला तो हरामी हो सकता है, काबे का तवाफ करने वाला हरामी हो सकता है, मगर हुसैन की तुरबत की ज़ियारत करने वाला हरामी नहीं हो सकता। यकीन नहीं। हाँ हजूर देखिए, मौला रश है, उंगलियों में दिखाया कोई सुवर है, कोई गधा है, जानवरों की शक्लें बनी है, का जो हमारी तुरबत पे आ जाए वो किसी मजहब से भी ताल्लुक रखता है, किसी से बेमशरूतुल इंसान, शर्त है उसका इंसान होना, कोई मजहब उसके लिए जरूरी नहीं है। तो हुसैन वो है जिसको मानना मजहब के लिए जरूरी नहीं है, हुसैन को मानेगा वो जो इंसान हो, और हुसैन को कत्ल इंसानों ने नहीं किया, हुसैन को कत्ल हैवान सामित ने किया है। और कोशिश कीजिए कि आले मोहम्मद को माने, सोचे नहीं, सोचना कुफ्र है और यकीन के बाद तहकीक हराम है। यकीन जब यकीन कर लिया तो तहकीक नहीं होनी चाहिए। बारे आले मोहम्मद को फतवों से नहीं माने, आले मोहम्मद मानने वाले हैं, और कभी नमाज और आले मोहम्मद का टकराव नहीं करें। नमाज अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, मगर वो नमाज बाई से लानत है, नमाज का इनकार गुनाहगार है, हुसैन का इनकार कुफ्र है।